Good morning, friends. This video is for this chapter titled India Through a Traveler's Eyes. Pearl S. Buck. The writer is Pearl S. Buck. She has written this topic to inform us about India. What is the opinion of outsiders, foreigners about India? We are going to study that here. In this chapter, we will study the point of view of Pearl S. Buck about India. Although she was an American, she lived in China, but her love for India is really remarkable. So, India through a traveler's eyes. इंडिया भारत एक विदेशी यात्री की आंखों में. ठीक है, तो विदेशी यात्री ने भारत को क्या समझा ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे. द राइटर इज पर्ल एस बक. पर्ल एस बक लाइफ स्पैन 1892 to 1973. American by birth. She was American by birth, was reared in China. She was looked after in China. Her childhood spent in China by her missionary parents. Her parents were missionary people. She taught in a Chinese university. She taught in a Chinese university. उन्होंने Chinese university में पढ़ाया भी. She is known for her travelogue and memoir. Travelogue मतलब यात्रा वृत्तांत and memoirs मतलब स्मृतियाँ. So she is known for her travelogue and memoirs. She wrote personal accounts of her visits to different countries in simple, lucid and effortless English. उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लिखा. किसके विषय में? तो भिन्न भिन्न देशों के विषय में, जो बहुत ही सरल, सरस और सहज भाषा में लिखी गई थी. सरल, सरस एवं सहज. इंग्लिश सरल, सरस, सहज. शी won the Nobel Prize for Literature in 1938. Notable among her chief works are. उनके जो महान कार्य हैं, जो कृतियाँ उनकी हैं, नोटेबल ध्यान देने लायक, नोट करने लायक. नोटेबल अमॉन्ग हर चीफ वर्क्स आर द गॉड्स अर्थ दैट पब्लिश्ड इन 1931, a novel on China and Come My Beloved, with India as background. The present piece, India Through a Traveler's Eyes, is an extract from my several words. This chapter, India Through a Traveler's Eyes, एक विदेशी, एक यात्री की निगाहों में भारतवर्ष. तो निगाहों के द्वारा भारतवर्ष को देखा गया किस रूप में. ये चैप्टर दिस इज एक्सट्रैक्ट. ये चैप्टर है, एक्सट्रैक्ट है, लिया गया है फ्रॉम सेवरल वर्ड्स. मेन बुक इज My Several Words, and from that book this chapter has been taken from, which is a personal record of her life. This is a personal account of her own life. It shows her love for the poorest people living in Indian villages. In this chapter we will get her love for the poorest people living in Indian villages. भारत के गाँवों में रहने वाले गरीबों के प्रति उनका प्यार इसमें दर्शन होता है, दर्शनीय है. इट शोज. आफ्टर दैट वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग. बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस, बिकॉज सच क्वेश्चंस विल प्रिपेयर द बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर. हैव यू एवर विजिटेड प्लेसेज आउटसाइड योर स्टेट? क्या आप अपने स्टेट से बाहर कभी गए हैं? स्टेट से बाहर की जगहों को आपने देखा है, यात्रा की है कभी? डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल एंड सिविक सेंस देयर? हैव यू नोटिस्ड एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर ओन लाइफ स्टाइल एंड देयर्स civic sense?
which aspect of their life has impressed you most? So you have to express your thought about which aspect of their life has impressed you most. उनके जीवन की कौन सी बात, उनके जीवन का कौन सा पहलू आपको ज़्यादा प्रभावित किया, आप उसको लिखिए. So this is for the preparation of the chapter. After that we are going to start about the chapter India through a traveler's eyes. ठीक है. तो 9 after that line number 1, India had always been part of the background of my life. भारत हमेशा से मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है. इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ. भारत हमेशा मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का भाग रहा है. बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ. लेकिन इसे मैंने अब तक पूरा कभी नहीं देखा है. एट द स्टडीज दैट आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी. लेकिन वो कहानियाँ मुझे मालूम है जो मेरे इंडियन फैमिली डॉक्टर ने मुझे बताया, उनकी पत्नी ने बताया. When I was child had woven themselves into my growing dreams. उन कहानियों के द्वारा, वो कहानियाँ जो हैं भारतवर्ष के विषय में जो मेरे दिमाग में छवि पैदा की हैं, वो आज भी है मेरे सपनों में. वो भारतवर्ष की वह छवि है आज भी जो मुझे मेरे भारतीय डॉक्टर ने, जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे, उनकी और उनकी पत्नी ने मुझे बताया था. एंड आई हैड लॉन्ग रेड एवरीथिंग. और मैंने सब कुछ पढ़ा है. लॉन्ग रेड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री. जो भी संभव था मैंने पढ़ा है. भारत के लिए बहुत कुछ पढ़ा है, उस देश के लिए. फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्नड ऑफ इट थ्रू बुद्धिज़्म. मैंने पिताजी के द्वारा, बुद्धिज़्म के द्वारा, मैं पिताजी से बुद्धिज़्म के द्वारा भारत को जाना हूँ. एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्धा. मेरे पिताजी ने मुझे लॉर्ड बुद्धा की लाइफ हिस्ट्री के विषय में बताया, बुद्धिज़्म के विषय में बताया. द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ द ह्यू. कलर से मुझे अपने यहाँ के ह्यू की याद आती है, जो कलर का ही पर्यायवाची हुआ, सिनोनिम. दैट इज इंडियन लाइफ as various as our own American human scene. Indian life is just like Americans, because here also many type of people live, many colors we can find. Yes, that is, the color is equivalent to hue. Hue means color. In Kashmir, where the white barbarian invaders, कश्मीर में जहाँ श्वेत असभ्य आक्रमणकारी यूरोप से आए थे, फ्रॉम यूरोप, लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया में प्रवेश किया. द पीपल आर ऑफन फेयर. वहाँ के लोग श्वेत होते हैं, गोरे रंग के होते हैं. अबर्न हेयर्ड, उनके भूरे बाल होते हैं. ब्लू आइड, नीली आँखें. वीमेन आर ब्यूटीज देयर. वे वहाँ की नीली आँखों वाली महिलाएं वहाँ की खूबसूरती हैं. ये यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज रिसेंटली मैरिड ए कश्मीरी मैन. एक मेरे भारतीय दोस्त ने, भारतीय नौजवान ने, जो मेरा दोस्त है, उन्होंने शादी की है एक कश्मीरी मैन, कश्मीरी से. दो ही हेयर इज डार्क. उनके बाल तो काले हैं. हैज आइज ऑफ ए क्लियर ग्रीन. और उनकी आँखें बिल्कुल हरी हरी हैं. द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज अ लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रीक. तो कलर जो है कश्मीर के लोगों के चमड़े की, वो क्रीम कलर है. और यूरोपियन क्लासिक जो रंग है उससे वो मेल खाता है. उनका जो फीचर है, उनकी जो आकृति है, वो यूनानियों के जो शास्त्रीय उनकी जो सुंदरता है, उनकी बनावट है, उससे वो मेल खाता है.
यानी यूनानियों की तरह उनकी आकृति है और रंग क्या है तो क्रीम कलर का है। बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी reckoned एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन या कॉकेशियन रेस। कॉकस है ये रूस में, दिस इज ए प्लेस इन रसा एंड देयर इन रसा वी फाइंड दिस कास्ट, दिस रेस Caucasian, and so this Caucasian race is also found in India. But all the people of India must be reckoned. Reckoned means identified as belonging to the Caucasian race. So, but all people of India must be called of Caucasian race. और सभी भारतीयों को, कश्मीरी को छोड़ दे तो वे कॉकेशियन रेस के माने जाएंगे। Whatever the color of the skin in the south, दक्षिण में जो भी रंग है उनकी चमड़ी का, though it be as black as any Africans, वो तो बिल्कुल अफ्रीकन लोगों की तरह का रंग है उनका, साउथ वाले का। And India has an amazing way of appearing unexpectedly in other life. इंडिया का जो है, इंडिया हैज एन अमेजिंग वे, एक आश्चर्यजनक उनका तरीका है, तौर तरीका है वो दूसरों के लाइफ में प्रवेश कर जाने का। ये अनएक्सपेक्टेड है, आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उस तरह के आश्चर्यजनक उनका तौर तरीका है वे कि दूसरों के जीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये एज फॉर एग्जाम्पल टुडे इन द लाइफ ऑफ साउथ अफ्रीका द इंडियंस मेक ए थर्ड ग्रुप बिटवीन द साउथ अफ्रीकन्स एंड द ब्लैक एंड वाइट। एग्जाम्पल की बात कीजिए तो साउथ अफ्रीका का नाम लीजिए, वहाँ पर इंडियन ग्रुप एक तीसरा ग्रुप है, वहाँ का जो मूल निवासी है साउथ अफ्रीकन हुए, एंड द ब्लैक एंड वाइट, और वहाँ वो ब्लैक वाइट के रूप में लोग बटे हुए हैं, और बीच में एक तीसरा ग्रुप है जो इंडियन का है। वाइट पीपल वहाँ हैं, ब्लैक पीपल हैं, और एक इंडियन टाइप का पीपल है। कहाँ पर? इन साउथ अफ्रीका। फॉर दैट मैटर देयर वॉज आवर इंडियन फैमिली डॉक्टर, और इसीलिए वहाँ हमारा एक इंडियन फैमिली डॉक्टर है। एंड वाई शुड देयर हैव बीन एन इंडियन डॉक्टर इन अ चाइनीज पोर्ट टू टेंड एन अमेरिकन फैमिली। कोई भारतीय डॉक्टर चाइना के पोर्ट में क्यों अमेरिकन फैमिली की देखभाल करेगा? एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, और भारत के विषय में कुछ अफवाह भी है, वह भी परसिस्ट है, माने कंटिन्यू है। फॉर दे आर अ मेमोरेबल पीपल, वे लोग यादगार लोग होते हैं। ड्रामेटिक, वे ड्रामेटिक होते हैं, नाटकीय उनकी जीवन शैली होती है, नाटकीय ड्रामेटिक स्टाइल। एंड पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइव्स, वे पैशनेट होते हैं, समर्पित लोग होते हैं, भावुक कामुक होते हैं। ये पैशनेट का सब मतलब है, कामुक भी, भावुक भी, समर्पित भी। पैशनेट एंड फाइंडिंग ड्रामेटिक लाइव्स, और वे उनका जो लाइफ होता है वो ड्रामेटिक होता है। यू सी हाउ इंडिया हैज ए वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। यू सी हाउ इंडिया हैज ए वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। आप समझ सकते हैं कि कैसे हाउ इंडिया, कैसे भारत में मानव जीवन आगे बढ़ा है। एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज मैनेज्ड, और इंडिया ने कैसे मैनेज किया उसको। मियरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, मियरली मतलब ओनली, केवल, मियरली MERELY, मेरेली नहीं, मियरली लोग बोलते हैं इसको, तो मियरली, और अदर वर्ड इज ओनली, ONLY, ओनली को ओनली नहीं बोलिएगा, ओनली। तो मियरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस, अपनी आज़ादी को मेंटेन करते हुए, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए भारत ने अपनी जीवन शैली को कायम रखा है, एक मानवीय जीवन शैली को। एंड यस बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स, और इन्होंने, इस देश ने ये महामानव भी, सुपीरियर इंडिविजुअल, महामानव भी पैदा किए हैं। टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड, इन्होंने पूरे विश्व को इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। इन दीज फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम, ये आज़ादी के कुछ सालों में, ये जो कुछ साल, जो फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम, कुछ साल जो बीते हैं, ये कुछ थोड़े से साल आज़ादी के, दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट।
तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया दे करके चले गए, उसका उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है, लाभ उठाया है, बेनिफिट उठाया है। इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट द नॉलेज ऑफ द वेस्ट। क्या उन अंग्रेज छोड़ गए? नॉलेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम का जो ज्ञान है। द प्योर एंड एक्सक्यूजिटिवली द प्योर एंड एक्सक्यूजिटली enunciated English tongue of men and women educated on both sides of the globe। ये भारतवर्ष क्या है? तो यहाँ के लोग एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ फैंटास्टिक एक्सक्यूजिटली इंग्लिश बोलते हैं। भारत के लोग जो अंग्रेजी बोलते हैं वो दुनिया में लाजवाब है। देयर प्रोनाउंसिएशन इज फैंटास्टिक, एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का यूज लोग करता है भारत के लोग व्हेन दे स्पीक इंग्लिश। Witness Nehru and with him a host of men learning how to govern। नेहरू के एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे लोग बहुत सारे हुए होस्ट ऑफ मैन जिन्होंने शासन करना सीखा। परलेस बाक ये फॉरेनर है शीज, सो शीज ये इनको लगता है कि भारत के लोग बाहरी विदेशों से सीखे हैं, पश्चिम वालों से सीखे हैं शासन करना। इनके कहने का मतलब कि पहले से शासन नहीं होता था भारत में। तो ये वेस्टर्न पीपुल का ये सुपर ईगो रहता है। तो ये दैट इज हियर, दैट इज द ईगो ऑफ द राइटर। ये बोल रही है कि यहाँ के लोग पश्चिम से सीखे हैं शासन करना। लर्निंग हाउ टू गवर्न, नेहरू जी और उनके जैसे लोगों ने भारत से दे लर्नड हाउ टू गवर्न। एंड द फर्स्ट वीमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो बना, वो उसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है, वो लेडी प्रेसिडेंट जो फर्स्ट वहाँ का हुआ, तो वो थी जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, उसका नाम थी विजया लक्ष्मी पंडित और वो महिला थी। तो प्रथम जो जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट हुआ यूनाइटेड नेशन का, दैट वाज अ लेडी एंड दैट वाज फ्रॉम इंडिया। सो दिस प्रेस्टीज कम्स टू इंडिया। A women of India and the man in charge of the prisoner exchange in Korea and India general। देखिए, और कोरिया में युद्धबंदियों के आदान प्रदान का ये फैसला हुआ था, तो उसकी मध्यस्थता करने का जिम्मा भारत को ही मिला था। तो ये भारत की महानता है। कोरिया में युद्धबंदियों का आदान प्रदान हुआ था प्रिजनर का, तो उसका इंचार्ज बनाया गया था एक भारतवासी को ही। Who won trust from all? That's why Indian people, Indian leaders have got trust from all the corners of the world. Even the blustering and accusation at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India, and this confidence, founded in unyielding idealism, permeates our world life। भले ही भारत में कुछ आरोप हैं, लगते हैं भारत में असंतोष है, लेकिन इसके बाद भी विदेशों में भारत के प्रति विश्वास है और पूरी दुनिया में भारत को स्वीकार किया गया है एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड लाइफ। इसका आदर्श है। ठीक है। व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी? मैं इंडिया क्या देखने के लिए गई थी? नॉट द ताजमहल, ऑल्दो आई डिड सी इट। मैं ताजमहल देखने नहीं गई थी, भले ही मैंने उसको देखा। इट एंड बाय मूनलाइट, दिस इज सेड दैट व्हेन यू सी ताजमहल इन मूनलाइट you get extraordinary beauty. So that lady Perles Buck had also seen the Taj Mahal in the moonlight, but that was not her aim, not Fatehpur Sikri. She had visited the fort of Fatehpur Sikri, although I did see it. That was also not her aim, but she saw that ये फतेहपुर सिकरी देखना या ताजमहल देखना उनका एम नहीं था, भले ही इन जगहों को भी उन्होंने देखा। नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, ऑल्दो आई डिड सी देम। और ना ही मैंने न्यू दिल्ली के ग्लोरी को देखने के लिए भारत की यात्रा की, भले ही मैंने उनको भी देखा। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैं भारत आई थी भारत के 2 ग्रुप्स को देखने, 2 ग्रुप्स।
दो समूह हैं भारत में, दो समूह को मिलाकर भारतवर्ष बनता है। द यंग इंटेलेक्चुअल्स, यंग इंटेलेक्चुअल नौजवान जो पढ़े लिखे थे, इन द सिटीज शहर के पढ़े लिखे नौजवान, एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेज और गांव के किसान। दीज आई मेट इन लिटिल रूम्स इन द सिटी, मैंने इन लोगों से सिटी में मिला था। इन लिटिल हाउसेज इन द विलेजेज, पढ़े लिखे नौजवानों से मैंने कहाँ भेंट की? द रूम्स इन द सिटी, शहरों में, और गांव में, घरों में मैंने गांव के किसानों से भेंट की। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स टू फ्रीडम, और मैंने उनके प्लान को फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए क्या प्लान था उनका, ये भी मैंने सुना। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल, although the intellectuals of India were in the faith that world war will surely happen, inevitable, avashyambhavi. They had been bitterly disappointed after the First World War by what they felt were the broken promise of England. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी वे भारतीय लोग अंग्रेज़ों के द्वारा ठगे गए महसूस किए थे। अंग्रेज़ों ने वादा किया था कुछ करने का, आज़ादी देंगे, कुछ अधिकार देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे वेयर फीलिंग जस्ट लाइक broken heart when someone makes promises and do not complete that, then we feel that we are broken heart. So the British government had not kept her promises, so Indian people were feeling broken heart and sad. वादा तोड़ा था उन लोगों ने, इसलिए भारत के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दे वर नॉट हैप्पी, दे वर फीलिंग ब्रोकन हार्ट, दिल टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, बिकॉज दे हैड ब्रोकन प्रोमिसेज। द इंग्लिश दे डिक्लेयर्ड हैड नो रियल पर्पस टू रीस्टोर इंडिया टू द पीपल। एक्चुअली वे लोग बोले, नौजवान लोग जो पढ़े लिखे थे भारत में, वे लोग समझ रहे थे, बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य नहीं है भारत को भारतीयों के हाथ में सौंप देना, नहीं। आई कुड बिलीव इट फ्रेश एज आई वॉज फ्रॉम चाइना, मुझे उसमें पूरा यकीन था। आई वॉज बिलीविंग दिस ऑल्सो, आई बिलीव दैट ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फ्रॉम चाइना वेयर द पीरियड ऑफ पीपल्स ट्यूटलाज सीम्ड एंडलेस। वहाँ लगा कि लोगों का जो आंदोलन है, लोगों की पीड़ा, वो अभी एंडलेस है। एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर, और स्वशासन जो था वह बहुत दूर जा रहा था हर साल। व्हेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, जनरली रूलर्स जो थे वो बोलते थे कि आप जब आज़ाद हो जाइएगा आज़ादी के लिए तो हम दे देंगे आपको आज़ादी। कंकरर्स हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट्स, ये हमेशा जो रूलर होते हैं, शासक, वो लोगों को बोलते हैं कि जब आप आज़ादी के योग्य हो जाएंगे तो आपको दे देंगे, एट्सेट्रा। आज़ादी के विषय में ये सब बात बोलता है सभी शासक वर्ग कि जब आप उसके योग्य होंगे तो आपको आज़ाद मैं कर दूंगा। बट हुईज, लेकिन कौन है टू डिसाइड व्हेन द मोमेंट कम्स, व्हेन विल द मोमेंट कम, हु विल डिसाइड इट। लेकिन कब हम आज़ादी लेने के लायक होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? एक्चुअली ये बात बनाने की बात है। एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग इट। जब हम किसी से अनुभव प्रमाण पत्र मांगते हैं तो वो काम नहीं करेगा तो अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? कोई आदमी काम करने आया, आप उससे मांगिएगा कि अनुभव प्रमाण पत्र है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। विदाउट डूइंग वर्क हाउ कैन द पर्सन विल प्रोड्यूस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? द सेम केस इज हियर। Here English people were offering them to supply them freedom, but they were saying that when you will be ready for that, we will give you. So unless and until they are not given freedom, how can they prove that they are fit for that? So इसलिए the intellectuals in India were restless and embittered. I sat through hours watching their flashing dark eyes. इसलिए भारत के बुद्धिजीवी बेचैन थे और मैंने उनकी गंभीर आंखों में इसकी तरफ देखी थी। ठीक है। सो हियरिंग द एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, वे एंडलेस फ्लो ऑफ लैंग्वेज, वे लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करते थे। कौन? इंडियन पीपल।
द प्योरेस्ट इंग्लिश, देयर इंग्लिश वाज प्योर कंप्लीट। ओ पूरा शुद्ध, पूरी शुद्ध इंग्लिश अंग्रेजी बोलते थे वे लोग। कौन? भारत के पढ़े लिखे लोग। ये पूरे दुनिया में कहा जाता है कि इंडियन पीपुल स्पीक इंग्लिश, यस, मोर करेक्ट देन अदर पीपल, into which they poured their feelings. They were expressing their feelings in their language. The plan then was that when the Second World War broke, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गया तो प्लान ये बना भारत में, इंडिया वुड रीबेल इमीडिएटली अगेंस्ट इंग्लैंड एंड कंपेल हर। भारत अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देगा और उनको मजबूर करेगा, दिस कॉम्प्लिकेशन टू सेट हर फ्री, कि उसको आज़ादी मिले। They would not be forced as they declared they had been in the First World War. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीयों को प्रेशर दिया गया था, अब वे प्रेशर मानने को तैयार नहीं थे। सो नाउ दे वेयर इन ए मूड टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर एंड टू बी फ्री। They would not be forced as they declared they had been in the First World War to fight at England's command. फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ लिया और युद्ध ओवर होने के बाद when the war was over, they cheated them, they broke their promises and the English rule continued. So still then that time has come. Now the Second World War is going to start, and this time Indian intellectuals were not in a mood to support British government because they needed freedom. And then I asked, तब मैंने उनसे पूछा तब क्या होगा? एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, भारत के नौजवान लोग वे लोग बोले, वी ऑल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट हर। और तब आज़ाद देश के रूप में हम लोग ये निर्णय लेंगे कि अंग्रेजों का साथ दें कि उनका विरोध करें। 9. व्हाट दे डिड नॉट रेकॉन ऑन, क्या वे लोग नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए? When the time came was the savagery of Nazism and the aggressions of Japan in Asia. वे लोग ये नहीं समझ पाए कि नाजिज्म का आक्रमण की जो आक्रमणकारी है, जो बर्बरता है, वो जापान में, एशिया के जापान में जो नाजिज्म का प्रभाव है, जो बर्बरता है नाजिज्म की, उसका जो आक्रमण है, उसको भारतीय नहीं समझ पा रहे थे उस समय। ये कहना है पर्लेस बक का। हकीकत है कि समझ पा रहे थे, बट पर्लेस बक इज फॉरेनर, शी इज लुकिंग इंडिया फ्रॉम हर ओन आइज, हर फॉरेनर आइज। ओके, व्हेन दे परसीव्ड दैट दे मस्ट चूज बिटवीन द एक्सिस एंड द इंग्लिश, जब उनको ये कहा गया कि आप जापानियों को चुनिएगा या अंग्रेजों को चुनिएगा, दे चूज द इंग्लिश। तो दैट टाइम they became in the favor of England. They chose English, aware that in spite of many injustices, they were choosing between barbarism and civilization. ये उन लोगों को पता था कि अंग्रेज भी अन्याय करते हैं, लेकिन जब बर्बेरिज्म असभ्यता और सभ्यता के बीच में चुनना था तो उन्होंने सिविलाइजेशन को चुना। दैट वाज इंग्लैंड। इंग्लैंड सिविलाइजेशन का प्रतीक माना गया। दे पोस्टपोन्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, उन्होंने अपने फ्रीडम के प्लान को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। गांधी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ओन कंट्री, गांधी अपना काम कर रहे थे अपने देश में। अनटिल द वॉर वॉज ओवर, जब वॉर ओवर हुआ, एंड बाय देन द वाइजेस्ट माइंड्स इन इंग्लैंड, और तब इंग्लैंड के बुद्धिमान लोग, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड, रिटर्न इंडिया टू हर पीपल, और इंडिया को आज़ाद कर दिए। स्वशासन यहाँ हो गया, आज़ादी मिल गई भारत को। इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश मैन एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया टू नो व्हाट विजडम वाज, बहुत सारे अंग्रेज जो थे वह विरोध भी करते थे कि भारत की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। उन लोगों को एशिया और भारत की समझ नहीं थी, ऐसा इसीलिए वे लोग विरोध कर रहे थे। Not even Churchill's prophecy of blood bath, partly fulfilled at that, could prevent the inevitable. यहाँ तक कि चर्चिल की जो भविष्यवाणी थी कि रक्तपात होगा इंडिया में लेकिन आज़ादी नहीं देंगे, वह भी पूरा नहीं हो पाया, इंडिया आज़ाद हो गया।
इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड, इंडिया ने बहुत दिनों तक इंतजार किया था, जब तक हो सकता था उतना लंबा इंतजार किया आज़ादी के लिए। एंड पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वेयर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, और भारत के पीजेंट और बुद्धिजीवी ये दोनों एक साथ थे एक कॉम्बिनेशन के रूप में आज़ादी के लिए। इट वॉज गांधी जी स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली, गांधी जी की ये ताकत थी, ये उनको बता दिया गया था दैट बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल मस्ट बी वांट टू वर्क टुगेदर, कि भारत में और गांव के, भारत में शहरी और ग्रामीण दोनों जनता को, दोनों तरह के लोगों को एक साथ आकर के आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है, टुगेदर फॉर देयर कंट्री। हिज होल्ड वॉज इक्वली स्ट्रॉन्ग अपॉन बोथ, गांधी जी की पकड़ शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों पर समान रूप से थी, होल्ड अपॉन बोथ, एंड सो ही अचीव्ड हिज एंड, इस प्रकार से उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ। विदाउट वॉर, बिना वार के ही, बिना वार के ही गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट एट फुल्ली अंडरस्टैंड द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैज़ टू टीच इन दिस विनिंग हर फ्रीडम, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, अमेरिका में भी नहीं हुआ कि बगैर आज़ादी के, बिना आज़ादी के, बिना आंदोलन के, बिना खून बहाए आज़ादी मिली हो, लेकिन भारत में गांधी के नेतृत्व में ऐसा संभव हुआ, अहिंसक तरीके से भारत को आज़ादी मिली। तो ये गांधी की महानता है और ये ग्रेटनेस गांधी के नाम है। ये अपने तरह का एक अनूठा था। भारत इतना बड़ा देश, यहाँ अगर आंदोलन होता या गोली चला करके आज़ादी, थोड़ी बहुत गोली चली है देश में, दंगे फसाद हुए, सब हुए, लेकिन अगर युद्ध करके आज़ादी लेने की बात होती तो ये अनुमान है कि इससे कहीं ज़्यादा हताहत लोग होते। तो इस प्रकार से गांधी जी को इस बात का क्रेडिट मिलेगा कि वो उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से लोगों की जान माल की रक्षा करते हुए अंग्रेज़ों के हाथ से सत्ता हस्तांतरण करवाने में सफलता प्राप्त की। सो परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट एट फुल्ली अंडरस्टैंड, हम लोग शायद अमेरिकन भी अभी तक नहीं समझ पाते हैं पूरी तरह से द ग्रेट लेसन, वो महान सीख दैट इंडिया हैज़ टू टीच इन दस विनिंग हर फ्रीडम, आज़ादी पाने का ये तरीका, ये सीखना है हमें इंडिया से या अमेरिकन को भी। बिसाइड हर माइटी ट्रायम्फ ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक्स इन साइज एंड कंसेप्ट, तो अमेरिकन आज़ादी की जो लड़ाई है वह भारत की आज़ादी की लड़ाई के मुकाबले श्रिंक है, छोटा हो जाता है साइज में और कंसेप्ट में। ये अहिंसात्मक तरीके से ये आज़ादी प्राप्त करना ये दुनिया के किसी भी इतिहास में संभव नहीं है, लेकिन भारतीयों ने ऐसा किया। दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। इंडिया हैज टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, भारत ने मानवता को एक पाठ सिखाया है, पाठ पढ़ाया है। एंड इट इज़ टू आवर पेरिल इफ़ वी डू नॉट लर्न इट, ये हमारा दुर्भाग्य है कि अगर हम लोग इससे कुछ सीखते नहीं हैं। द लेसन, वह लेसन क्या है? दैट वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, वार एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस, वार और किलिंग से क्या होता है? लॉस होता है, प्राप्ति नहीं होती। एंड दैट नोबल एंड इज assured only if the means to attain it are of peace with it and also noble, अगर उद्देश्य महान उद्देश्यों की प्राप्ति तभी होगी जब साधन भी शांतिपूर्वक हो, महान हो, नोबल हो। जब तक साधन की पवित्रता नहीं होगी तब तक आप पवित्र बातें, चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। हिंसा के द्वारा आप अहिंसक बातें पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दैट इज सो हियर इन दिस पैरा वी आर गेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, दैट इज नॉन वायलेंस एंड थ्रू विच इंडिया हैड अटेन्ड फ्रीडम। लाइन नंबर 10, द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ये उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आरोप है, जो धब्बा है, वो क्या है आरोप? हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेजेज, वो गाँव में मिलता है अब भी ये, ऑफ इंडिया। देयर वाज नॉट एट द टॉप टू इन द थाउजेंड ऑफ द रियल इन हो गया,
द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद के खिलाफ आरोप, हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया, भारत के गाँव में है. देयर वाज नॉट एट द टॉप, टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स दैट डिड एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस. भारत में बेरोजगारी है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग जो शहरों के हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं, ट्रेंड हैं, इंग्लिश स्कूल से पढ़े हैं, बट बिफोर देम ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ जॉब्स आर एग्जिस्टिंग. सिविल सर्विस का लिमिट है, स्कोप, उसमें बहुत जॉब की संभावना नहीं है, तो बेरोजगारी है. द टाउन्स एंड सिटीज वेयर फ्रोदिंग विथ अनहैप्पी यंग मैन. भारत में नाखुश लोगों की संख्या बढ़ रही है, शहरों में भी. कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, कल्चर्ड और वेल एजुकेटेड लोगों में भी, हु कुड फाइंड नो जॉब्स एंड वे आर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम. और जो एम्पायर का स्ट्रक्चर था पहले से, उसमें बहुत जॉब की संभावना भी नहीं है, नया जॉब क्रिएट भी नहीं हो सकता है. बट द रियल प्रूफ ऑफ इविल, बुराई का असली प्रमाण क्या है? आई से अगेन, मैं फिर कहूँगी, वॉज इन द मिजरेबल विलेजेज, वह गांव की दयनीय स्थिति में है. आई थॉट आई हैड सीन पॉवर्टी एनफ इन चाइना, मैंने चाइना में भी, मैं समझती हूँ कि मैंने देखा है गरीबी को. इट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेजेज आई न्यू दैट द चाइनीज पीजेंट वॉज रिच इन कंपेरिजन. लेकिन जब भारत की गरीबी को मैंने देखा, मैंने कंपेयर किया कि इंडिया का जो चाइनीज जो पीजेंट का हालत है वो इंडिया वाले पीजेंट से अच्छा है, उनकी हालत अच्छी है. ओनली द रसन पीजेंट आई हैड सीन ईयर्स बिफोर कुड कंपेयर्ड विद द इंडियन विलेजर. ओनली रसन पीजेंट, रूस के जो किसान हैं उनकी तुलना हो सकती है भारतीय ग्रामीणों से, नहीं तो चाइना वाले के नहीं होगा. चाइना के जो किसान हैं भारत के किसानों से अच्छी स्थिति में हैं. ऑल्दो दैट रसन वॉज अ वेरी डिफरेंट क्रिएचर एंड इन्फीरियर इन मैनी वेज, भले ही यद्यपि रसा क्या है तो वो बहुत मामले में डिफरेंट है और बहुत मामले में बहुत पीछे भी इन्फीरियर है. इन्फीरियर मतलब नीचे, घटिया है. फॉर द इंडियन पीजेंट वॉज लाइक द चाइनीज, फॉर द इंडियन पीजेंट वॉज लाइक द चाइनीज इन बीइंग अ पर्सन इनेटली सिविलाइज्ड. और एक मामले में यह है, इन चाइना से आगे भारत के पीजेंट हैं कि वो ये सभ्य उनसे ज़्यादा हैं. द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ, ये परिपक्व होती हुई संस्कृति भारत की संगठित पारिवारिक जीवन की, एंड प्रोफाउंड फिलोसोफिकल रिलीजन, और मजबूत दार्शनिक धार्मिक बातें, दार्शनिक धर्म हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सोल, इससे भारत की जनता के दिमाग और उसकी आत्मा बनी है. इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, भारतीय ग्रामीण भले ही लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते. एंड द चिल्ड्रेन, द लिटिल चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजेज, हाउ दे टोर एट माई हार्ट, उन्होंने मेरा दिल कैसे तोड़ दिया. थिन बिग बेलीड, वे दुबले पतले बड़े बड़े पेट वाले, एंड ऑल द ह्यूज सैड डार्क आइज, उनकी बड़ी बड़ी आँखें, उदास आँखें. आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ, मुझे आश्चर्य है कि अंग्रेज इस स्थिति को देख करके अपने आप पर आरोप नहीं लगाएगा. ये अंग्रेजों पर आरोप है, यहाँ गरीबी है, यहाँ कुपोषण है. 300 ईयर्स ऑफ इंग्लिश ऑक्यूपेशन एंड रूल, 300 साल लगभग भारत का पर अंग्रेजों का राज रहा है. एंड कुड देयर बी चिल्ड्रेन लाइक दिस, और तब यहाँ के बच्चों की स्थिति ऐसी है, बताइए. यस एंड मिलियंस ऑफ देम, और मिलियंस ऑफ देम, उनमें मिलियन लोग ऐसे हैं. एंड द फाइनल इंडिक्टमेंट श्योरली वाज दैट द लाइफ स्पैन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर्स. और कुपोषण है. उसके अलावा ये एक और आरोप है अंग्रेजों पर, ये कि यहाँ की लाइफ स्पैन है, ये जीवन जीने का जो रेट है, दर है, उम्र है निर्धारित, वो क्या है, एवरेज औसत आयु, वह 27 ईयर्स. जिस समय लेख लिखा गया उस समय
केवल 27 साल ही यहाँ की औसत आयु थी, 27 ईयर्स ओनली। नो वंडर, आश्चर्य की बात नहीं है। देन दैट लाइफ वॉज हास्टेंड, यह लाइफ बहुत कम है। दैट ए मैन मैरिड वेरी यंग सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रेन एज मेनी एज पॉसिबल, इसीलिए जल्दी से जल्दी शादी होती थी कम उम्र में कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों मर जाने के पहले। बिफोर ही डाइड, उसके मरने के पहले कुछ बच्चे पैदा हो जाएं जितना संभव हो उतना, इसीलिए कम उम्र में शादी होती थी भारत में। आई लव्ड इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड को प्यार करती थी, करती हूँ अब भी, मैंने आई लव्ड इंग्लैंड। आई रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर, वहाँ की जर्नी मैंने किया उसको याद मुझे है। बट इन इंडिया आई सॉ एंड इंग्लैंड आई डिड नॉट नो, लेकिन भारत में जो इंग्लैंड मैंने देखा ये मुझे मालूम नहीं था। एंड आई वॉज फोर्स टू सी दैट इफ़ द इंग्लिश इन मेनी वेज द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, और मुझे अभी मानने में दिक्कत हो रही है कि अंग्रेज लोग दुनिया में सबसे सभ्य लोग हैं, अपने यहाँ सभ्य होंगे इंग्लैंड में, भारत में जो यहाँ गरीबी है इसका जिम्मेवार कौन है? दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दैट, सो आई डोंट फील द राइटर इज हियर सेइंग दैट दिस इज देयर इज ए क्वेश्चन ऑन द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश पीपल ऑन अर्थ। दुनिया में सबसे अच्छे अंग्रेज हैं जो अंग्रेज कहते थे, इस पर डाउट है। भारत में उन्होंने क्या किया? यहाँ तो गरीबी है, यहाँ तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया। The people who blazed the way for all of us to achieve the right of men to rule themselves. If colonialism could be corrupt, even these, then indeed none of us could dare become the rulers of empire. Colonialism बुरा है, वो इतना गंदा, इतना भ्रष्टाचार यहाँ कर देगा या भ्रष्ट कर देगा यहाँ की व्यवस्था को, तो क्या कहें। सच्चाई तो यह है कि इस हाल में अगर कॉलोनियलिज्म इतना करप्ट है तो कोई भी या व्यक्ति यहाँ का शासन अपने हाथ से करना नहीं चाहेगा। इंग्लैंड ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, ऐसी त्रासदी, ऐसी गरीबी पैदा की है, ऐसा कुपोषण का सीन है यहाँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ राज करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको लाज लगेगी। ये है कहने का मतलब। सो नाउ सम क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट T for true and F for false statements. Yeah. Pearl S. Buck had an Indian family doctor. Yes, true. The Mongolian from Europe invaded Kashmir. Mongolian from Europe. True. According to the writer, the Indians belong to the Caucasian race. True. The first women president of the General Assembly of the United States was an Indian. True. This is also true. Yeah, true. The writer wanted to listen to 4 groups. No, only 2 groups. So it is false. The young Indian intellectuals were disappointed with the English rule. The young Indian intellectuals were disappointed with the English rule. The young Indian intellectuals were disappointed with the English rule. Yes, disappointed. थे दुखी young Indian. So this is true. Indians were willing to fight in the Second World War at England's command. False. ये false. ये false है आपको, और ये भी false है। 5 और 7 false. ये false. ये false. After that 8. Indians believed in the nobility of means to achieve a noble end. Yes, साधन की पवित्रता पर यकीन करते थे भारत के लोग, तो ये 8 is also true. 9. The worst effect of colonization was seen in towns in the form of unemployment. True. Indians under the British rule had a life span of just 27 years. True. So only ये 7 and 5 false, otherwise all are true. Answer the following questions briefly. ये आपको, there are 6 questions. What does the word color remind the writer of? The
word color reminds the writer of the American society where it means hue. Hue means blend of so many colors, mixture of so many people, so many colored people. What were the benefits of the English rule? The benefits of the English rule are many. Number one is the coming of the boon of blessing of Western knowledge and a standard type of government structural government. The other point is also that English people brought India under one control. So this is also quality of English rule. Why were the intellectuals in India restless and embittered? The intellectuals of India were restless and embittered because after the First World War, English government had deceived them. They had broken their promises of granting freedom to them, dominion status, but they had not given them, and people of a town were without jobs also, so they were also restless. So ultimately they were restless due to their foreigner rule. What was the great lesson? The great lesson that India had to teach the West was non-violence. In under the leadership of Mahatma Gandhi, India achieved freedom without any violence, and so that is the great lesson even for America. Where was the real indictment against the colonization to be found? The real indictment against the colonization was to be found in India because English people were not able to to remove poverty from Indian life. There were children who were sick of malnutrition, and even after that there were people who were without jobs. So you can blame in colonization for these problems. Why was the writer moved at the sight of the children of the Indian villages? Because they were showing the problem of malnutrition. Their bellies, stomach were very big. They were having deep and sad eyes. They were thin. So these things are enough. These signs are enough to show the reality of British rule in India, which was unable to remove poverty, and so the foreigner rule was really bad. So the demand for freedom was justified. So this is the completion of part 1. So in the part second of video, when I will make second video for this chapter, the rest will be completed. So thank you for viewing. Have a nice day.